you wouldn't deny the Modi impact in Uttar Pradesh, would you? May I say, Arnab? Well, Arnab, let me tell you, BJP and Samajwadi are not the only two parties who are contesting election in Uttar Pradesh, let me remind you. We are also, our Morcha is there, Bhagidar Parivartan Morcha, we is contesting, and we are confident that the people of Uttar Pradesh will give their blessing and this time we will come victorious. And as you rightly said, 10th March 2022 will have a long-lasting effect on Indian democracy. Yes, you are right. Because the fascist government of Yogi will be shown the door, they will lose, and Yogi will go to his mutt in Gorakhpur. Samajwadi is also the same. BJP and Samajwadi are the two sides of the same coin. And we are confident that this time, UP will see a change. UP will get something which the people of UP have been denied for so long. We will be having our Bhagidar in the UP politics. Our Morcha, Bhagidari Parivartan Morcha, has clearly said that we want stake in the Uttar Pradesh politics. We are going there with our clear agenda. We want the employment basis. We are going there to contest the election. But are you not realizing that? Are you not realizing with the Prime Minister's involvement in the campaign that you are dividing the opposition vote? Right? Well, I don't trust the Prime. He is lying. Prime Minister talks are all jumlas. He said 15 lakh will be coming to your account. Nobody gave. He said 2 crore jobs will be provided. Did the youth of Uttar Pradesh got or the Indian youth got? Even today, economic survey said that there are 4 crores unemployed youth in the country. They don't have jobs. People are dying for lack of food. No, but even Ratnakar Tripathi. You are sitting in your air condition. You are sitting in your air-conditioned studio. You don't go to the grounds. We have been on the ground level and we know what the youth of Uttar Pradesh are facing today. And Prime Minister and the BJP will definitely get an answer. So called the Samajwadi Party as well. You asked the question of Muzaffarnagar, he could not answer. Why cases were not registered? Who could not answer? Who could not answer? Anurag could not answer, you said. No, one second. I'll pit you with Anurag then. 1 minute. Anurag and Waris. Waris, no, 1 minute. 1 minute. You're making a point to Anurag. You make it directly. You make a point directly. 1 second, Anurag. He's making a point to everyone. Be quiet. Make your point to Anurag directly. Make it in 30 seconds. Then Anurag will reply. Go on. Make your point. क्या बोल रहे हैं आप उनको directly बोलिए. Anurag, I will ask you a simple question. मुजफ्फरनगर का जब भी दंगा हो गया अनुराग भाई, तब मुझे बताइए सैफिए का वहाँ पे ये चल रहा था जब लोग वहाँ की उसमें रुक रहे थे सब जगह. तितर बितर थे लोग. उस टाइम सैफी का ये फेस्टिवल रखा गया था समाजवादी पार्टी का. मुजफ्फरनगर दंगा इंडिया की हिस्ट्री में आफ्टर द पार्टीशन सेकंड ऐसा था जिसमें 50,000 लोगों ने अपने घरों को गंवा दिया था. तो आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपकी सरकार ने दंगइयों के ऊपर केस क्यों नहीं किया? अगर आपकी सरकार ने उस वक्त केस कर दिया होता तो आज जो उत्तर प्रदेश की जनता ये जो भाजपा का तांडव देख रही है ना, ये तांडव देखने को नहीं मिलता. इसके जवाबदारी आपकी है. सवाल नंबर 2. नहीं, एक ही सवाल है. Let him reply to the first question. आपसे बोल दिया कि अगर हम सत्ता में आ गए. अरे क्वेश्चन नंबर 2. Why? Let him answer to both of my questions one by one. हमने बोला कि हम अगर भागीदार परिवर्तन मोर्चा हमारा जीता, सत्ता में आए हम, तो हम पहले 5 साल के अंदर 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे. पहला मुख्यमंत्री बनेगा ओबीसी का बाबू सिंह कुशवाहा साहब, दूसरा बनेगा दलित समाज का पवन मिश्रा साहब, और 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे जिसमें 1 मुसलमान होगा. क्या बताइए आप में हिम्मत और ताकत है अर्नब के चैनल पे बोलने की कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो 1 मुसलमान को कम से कम 1 उप मुख्यमंत्री बना देंगे? बताइए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए. चलिए अर्नब को जवाब दीजिए. अर्नब आस्क हिम द क्वेश्चन नाउ. No, he's understood the questions. He'll reply to both. ओ मुझे बोलने दीजिए. हो गया. अब मैं जवाब दे दूं. देखिए जब से आपकी डिबेट चल रही है आधे घंटे 40 मिनट्स हो गए अर्नब. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दिमाग में सिर्फ क्या घुस गया है पता है? दंगा. क्योंकि ये दंगाई पार्टी है. ये जब बाहर सत्ता से रहते हैं इनका एक ही काम है दंगा करना. और हम इन पे नकेल डालते हैं. संगीत सोम पे या सुरेश राणा पे दंगा के आरोप लगते हैं. डिप्टी ये उसको मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं. मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्पोक्सपर्सन हूं. मेरे दोस्त अनुराग जी मेरी एक बात का तो जवाब दे दीजिए सर. मैं चुप हो जाता हूं. आप बोलो फिर दंगाइयों को आपने क्यों छोड़ दिया? आप बोलो फिर मैं बोलूंगा. फेस्टिवल में लाखों करोड़ रुपया क्यों खर्चा कर दिया जब लोग रिलीफ कैंप में रहे थे? आपने इस बात का जवाब नहीं दिया. अनुराग जी एक्टिंग मैं भी कर सकता हूं और आपसे कहीं ज्यादा अच्छी कर सकता हूं. सवाल मैं भी आपके आप बोलो. मैं आप जब बोलोगे तो दे दो मेरे भाई मेरी बात का.
एक जवाब नहीं दिया। गया, क्या आप मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ या ना, जवाब दो। हो गया, अब मैं बोलूं? हो गया होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, इसको दंगा के अलावा कुछ नहीं करना है। मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, 5 साल की आपकी सरकार हो गई, आप ये बताओ कि आपने क्या एम्प्लॉयमेंट यहां पे किया, आप ये बताओ कि आपने महिलाओं के साथ अन्याय क्यों किया, आप ये बताओ आपने यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो मांगने जाते हैं बच्चे, उन पे लाठी क्यों बरसाते हो, उनके सर क्यों फोड़ते हो, आप ये बताओ महंगाई बेरोजगारी का हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, आप ये बताओ कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, आपकी नाकामी की वजह से आप इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते, 700 किसानों की मौतें हुई, उनके परिवार को आर्थिक मदद कैसे मिलेगी, हम आएंगे तो 25 लाख रुपए देंगे, आप क्यों नहीं बात करना चाहते? आप दंगा, आपके दिमाग में दंगा 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 जिन्ना, दंगा जिन्ना, दंगा पाकिस्तान, दंगा जिंगा। अरे भाई गन्ना की बात करो, किसान के इनकम की बात करो, किसान के कैसे किसान का भला होगा उसके बारे में बात करो। आप पूरे देश को किसमें करना चाहते हो? आपने कहा था हम हिंदुस्तान को आएंगे, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो किसान से जो किसानों की जाने चलेगी उस पर भी बात कर रहा हूं। मैं तो बीजेपी को बोलता हूं इनका तो एजेंडा है गाय गंगा दंगा मंदिर, मैं तो वो भी बोलता हूं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि लोग एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद पर कोई बात नहीं करते। मैं तो पेट्रोल गैस डीजल के बढ़ते हुए दामों पे भी बात करता हूं, मगर अनुराग भदौरिया सिक्के के दो पहलू कोई बात नहीं करना चाहती है उत्तर प्रदेश में। That the BJP and Samajwadi party are two sides of the same coin. The nation is watching. See, he does not have the answer to any of my questions, Arnab. He is just going behind the BJP. नेशन देख रहा है कि सवाल बीजेपी से पूछना है, सवाल समाजवादी से पूछ रहे हो, देश देख रहा है, रिपब्लिक के व्यूअर भी देख रहे हैं कि आपको किसान के बारे में बात करनी चाहिए, आपको बच्चों की बात करनी चाहिए, महिला समस्या की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, तो आप समाजवादी की बात कर रहे हो। देश देख रहा है, अनुराग जी, देख रहा है, सरकार अनुराग सवाल पूछना है। Anurag Bhadoria, Mr. Bhadoria, I want to remind you, Mr. Bhadoria, by the way, I'll tell you one thing. You said the BJP is only talking about danga, but the Prime Minister said today the government which existed before 2017 was an expert in making half-finished projects on paper and laying their foundation stones and not completing it. Now, my